A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I just hope you all are studying properly and revising the things. As I am doing the revisions, in terms of the revisions, uh, I have discussed with you the psychodynamic approach. Psychodynamic approach, which is given by the Sigmund Freud, and I had discussed with you the two parts of it. I had discussed with you the levels of consciousness and the structure of personality. Today in this video I am going to discuss about the ego defense mechanism and the stages of personality development. The two topics I have discussed in the previous video and the two topics which are left I am going to discuss in this video. So from this your psychodynamic approach is going to be completed. So in this part, I had discussed with you the levels of consciousness, that there are three levels of consciousness: conscious, pre-conscious and unconscious. I also discussed with you the stages of personality development: id, ego and superego. Now, today I am going to discuss you about the ego defense mechanism. What are the ego defense mechanism? Before understanding about the ego defense mechanism, you should understand about the ego. What is the meaning of ego? So let us understand about ego. What is ego and what is the meaning of defense? Ego and defense. What does it mean? Ego, as I already told to you, it is that part of the person's personality which focuses on the reason. It talks about and it distinguishes between right and wrong. ये बताता है कि क्या चीज़ सही है and क्या गलत है. But sometimes what happen, ego also make a wrong decision and it will become dominant on ego. I told you that it is related to the desire. It जो है वो desire से related है. It always want what it wants. उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए. So ego is the thing which tells no, it is not an appropriate thing. But sometimes ego also does a mistake. It will dominate. So हम क्या करते हैं फिर at that time? We defend our ego. हम अपने ईगो को डिफेंस करते हैं. एंड फॉर डिफेंसिंग द ईगो वी यूज सम मैकेनिज्म, वी यूज सम टेक्निक्स एंड दैट इज नोन एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. So ego defense mechanism is a way of reducing anxiety by distorting reality. ये क्या करता है? It is a way of reducing anxiety. ये anxiety reduce करता है. What is obviously children, जो ये defense mechanism है, इनके फंक्शन क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी एंजाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं. इड डोमिनेंट हो गया था. इड के डोमिनेंट होने की वजह से बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द इड, ओके, ego is unable to reason and because of that inability ego is some kind of anxiety is producing in you. ठीक है. इट मान लीजिए इट सपोज अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से इसे समझिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बॉय हु डू द स्टीलिंग. ओके, एक बच्चा है जिसने अपने घर में अ बॉय हु हैज सीन अ 10 रुपी नोट ऑन द शेल्फ. ओके, एंड उस बच्चे का इड ने बोला कि गो एंड टेक इट. द बॉय first of all thinking
दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये कौन सोच रहा है? ये उसका ईगो बता रहा है ये गलत है, ठीक है, पैसे नहीं चुराने चाहिए, पैसे नहीं लेने चाहिए। दैट बॉय इज ए स्मॉल किड एंड उसका ईगो ये बोल रहा है कि ये गलत चीज है। विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स डोंट टच द मनी, इट इज समथिंग नॉट अ गुड थिंग, इट इज अ काइंड ऑफ स्टीलिंग, ये चोरी है एक तरह से। वो उसका ईगो उसको बता रहा है, बट इड इतना डोमिनेंट है, उस बच्चे को ये लग रहा है कि मैं उस 10 रुपी नोट से आई विल परचेज अ कैंडी फॉर मी। तो ही वॉज सो एक्साइटेड, ओके, वो ये सोच भी नहीं पा रहा है कि वो कितना गलत काम कर रहा है, बट ईगो कंटिन्यूसली उसको बोल रहा है, ईगो इज गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, स्टिल ही इज डूइंग बिकॉज इड जो है, इड उसके ऊपर डोमिनेंट हो गया और वो वहां से वो पैसे ले लेता है। नाउ पैसे ले तो लिया, अब नाउ मदर इज सर्चिंग फॉर दैट नोट। मदर इज आस्किंग टू हिम, बेटा you either you have seen that note, 10 rupee note? The boy, what the boy will reply? Here the boy used the defense mechanism, क्योंकि उसने ईगो की बात नहीं सुनी, इड डोमिनेंट हो गया। अब क्या करेगा? ईगो की बात न सुनते हैं, जब हम लोग ईगो की चीज़ों को नहीं सुनते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। तो ये मैकेनिज्म हम यूज करके उस एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। हम रियलिटी को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। रियलिटी को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं और एंजाइटी को। अब जैसे मदर ने पूछा उस बच्चे से कि तुमने 10 रुपीज़ का नोट देखा है क्या? ऑब्वियसली उस बच्चे ने लिया था, तो अब वो क्या बोलेगा? उसमें एक एंजाइटी आएगी, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा कि लिया तो मैंने था, अब मम्मा तो मैं क्या बोलूँ, व्हाट वुड आई से नाउ। तो अब वो क्या करेगा? ही यूज द डिफेंस मैकेनिज्म। वो क्या करेगा? अपने आप को डिफेंस करेगा। अब ऑब्वियसली उसको मालूम है कि इफ आई से द राइट थिंग टू द मदर विल स्कोल्ड हिम और अदर बीट हिम, गिव द पनिशमेंट फॉर दैट वन। उसको ये मालूम है ना कि अगर मैं मदर को ये बात बता दूंगा तो मदर मुझे क्या करेगी? पनिश करेगी। तो nobody wants a punishment, and that boy also not want a punishment, not to be scolded, not to be bitten. So what he will use? He use the defense mechanism. So let's discuss about those defense mechanism. क्या defense mechanism होते हैं? Please note it down this point first of all. This meaning that ego defense mechanism is a way of reducing anxiety by distorting reality. Now we are going to discuss about different kind of defense mechanism. So children, there are so many defense mechanism. The first one is the denial. Denial का मतलब ये होता है deny करना, not accepting the reality, not accepting the। तो बच्चा क्या है? डिनाइल भी यूज कर सकता है। बच्चा ये कहेगा, द बॉय विल से, नो मम्मा, आई हैव नॉट सीन, आई डोंट नो। मे बी द रिप्लाई विल बी आई डोंट नो। तो डिनाइल कर रहा है, नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, ठीक है, फाइन। सेकेंड, मे बी इट इज पॉसिबिलिटी। सो डिनाइल में क्या हो रहा है? डिनाइल में रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे डजंट एक्सेप्ट द रियलिटी, डिनाई करते हैं। लाइक बॉय विल से आई डोंट नो वेयर इट इज, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट इज द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म? द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन भी एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। रैशनलाइजेशन में क्या हो रहा है? पीपल मेक एक्सक्यूजेस। रैशनलाइजेशन, इसमें लोग बहाने बनाते हैं। पीपल मेक एक्सक्यूजेस टू मेक देयर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन वेरी गुड इन ट्रबल, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय हैज स्टील दैट 10 रुपीज नोट और टेकन 10 रुपीज नोट, बट व्हेन द मदर आस्क्स फॉर इट, द चाइल्ड विल से, मेक एक्सक्यूजेस,
आई हैव नॉट सीन इट. ओके, इज इट देयर? अच्छा वो था क्या वहाँ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा. तो एक्सक्यूजेस करना. मेनी टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन, कि हमारे इंट्रैक्शन अच्छे रहें, खराब ना हो, हम बहाने करते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म टू मैनेज अवर एंजाइटी and to defend our ego. Now what is the third one? Let me write it. Rationalization means making excuses. Making excuses to manage. Making excuses to manage interpersonal relationship. Making excuses to manage interpersonal relationship. Please write it down, children. I hope it is visible to you all properly, everything. Okay. Making excuses to manage interpersonal relationship. So I am rubbing this point also. I just hope you all have written it down. Sure. Third. What is the third defense mechanism? The third defense mechanism is projection. Yes, children, projection is also one of the defense mechanism. Projection भी एक तरीके का defense mechanism है. इसमें होता क्या है? What it is in it? Projection. Projection word बना है projector से. What is the purpose of the projector या what is the function of the projector? प्रोजेक्टर क्या करता है, जो चीज़ें आपके पास डेटा होती है वो स्क्रीन पर से रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता है. आप देखोगे उसमें नो एनी चेंजेस हैव बीन फाउंड, कोई चेंज नहीं होता, वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होता है. सेम यही प्रोजेक्शन भी है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हम अपने ईगो को डिफेंस करते हैं और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं. तो इसमें क्या होता है, सो प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन में पर्सन अपने ही ट्रेट को, अपने ही एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि हम खुद गुस्से में होते हैं और हम सेकंड पर्सन से पूछते हैं कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो पर्सन एट्रीब्यूट देयर. ठीक है, प्रोजेक्शन में पर्सन एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स ऑन अदर. पर्सन attribute their own traits on other. अपने ही ट्रेट को दूसरों पे एट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, खुद नाराज होंगे, खुद गुस्से में होंगे और बोलेंगे तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल विच वी हैव टेकन, दैट बॉय हैव टेकन द 10 रुपी नोट. सो अगर वो प्रोजेक्शन यूज करेगा तो क्या करेगा, तो इफ द मदर विल आस्क टू द चाइल्ड, यू हैव सीन बेटा, यू हैव सीन दैट 10 रुपी नोट. सो द बॉय विल रिप्लाई, मम्मा आई थिंक यू हैव टेकन इट, आई थिंक यू वर देयर. सो अपने ही ट्रेट्स को दूसरे पे एट्रीब्यूट करना, that is a projection. Okay, person attribute their own traits to other. I hope you all have written it down. So आगे बढ़ेंगे. 3 defense mechanism we have discussed: denial, rationalization and projection. Now the fourth one. So these 3 defense mechanism we have discussed. Okay, what the 3 defense mechanism? Rationalization, projection and denial. Now the 4th defense mechanism is reaction formation. Please note it down, children. Reaction formation. ओके, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? व्हाट इज इट इन द रिएक्शन फॉर्मेशन? रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या है?
So reaction formation. In reaction, now as it indicated from the name also, reaction formation यानी जो person का reaction है उसमें change आना. Basically reaction formation में क्या होता है, the person behave opposite to his or her true feeling. Okay, what is in the reaction formation? Person behave opposite to his or her ट्रू फीलिंग. पर्सन का जो ट्रू फीलिंग होता है उससे जस्ट अपोजिट पर्सन बिहेव करता है. पर्सन बिहेव अपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनली द पर्सन इज वेरी इन अ एंगर मोड बट आउटवर्ड ही इज बिहेविंग वेरी पोलाइटली, वेरी calm down manner. Basically you have seen an example of a, like if any person is very aggressive but in the front of his or her boss where he is working he is behaving in a submissive manner. So reaction formation is something person behaving just जैसे कि फीलिंग क्या होती है, जैसे हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होती है, हम घबराते हैं, एंजाइटी करते हैं. तो रिएक्शन फॉर्मेशन करना भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. हम अपने ईगो को डिफेंस करते हैं और दूसरों को चीट भी करते हैं एक तरह से. तो क्या हो रहा है कि जैसे हम अंदर से बहुत डरे हुए हैं पर हम ऊपर से दिखा रहे हैं नो आई एम वेरी काम डाउन, वेरी कूल डाउन. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे सभी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के लिए. जैसे दैट बॉय हु हैज टेकन दैट 10 रुपी नोट, इफ द मदर इज आस्क्ड फॉर इट, सो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा अपोजिट टू ट्रू फीलिंग. अंदर से बहुत डर रहा है कि हाँ लिया तो मैंने है, बट वो कहेगा वो जस्ट सरप्राइजिंग फेस लाएगा, वो सरप्राइजिंग. अच्छा ओके, व्हाट हैपेंड टू दैट? ओके, व्हाट हैपेंड टू दैट नोट मम्मा? वेयर इट इज? He has stolen it, he has taken it, but he is behaving just opposite to his or her feeling. So that is a reaction formation. So we have discussed the 4 defense mechanism: denial, rationalization, projection and reaction formation. ठीक है. एक और होता है, मेनली ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं: डिनाइल, प्रोजेक्शन, rationalization and reaction formation. Sometime repression भी होता है. I hope you all have written. Repression क्या होता है? Repress कर देते हैं completely. Repression मतलब, repression, the meaning of repression is दबन, mean दबा देना, repress कर देना. So repression में क्या होता है? This is the 5th defense mechanism. So repression is forgetting or rejection of memories of threat. जो थ्रेट की मेमोरीज होती है ना, जिससे हमें डर लगता है, उसको पूरी तरह से हम रिप्रेस कर देते हैं. कहाँ भेज देते हैं? अनकॉन्शियस में भेज देते हैं. ठीक है. अनकॉन्शियस में भेज देने की वजह से हमें सच में याद भी नहीं रहता कि हमने ऐसा कुछ किया है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन यानी दबा देना, फॉरगेटिंग और रिजेक्शन ऑफ द मेमोरीज ऑफ थ्रेट. नोट इट डाउन चिल्ड्रन इन योर कॉपी. रिप्रेशन, फॉरगेटिंग और रिजेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ थ्रेट. Okay. So I hope children you completely understand about the ego defense mechanism, which is a part of the psychodynamic approach. Now I am going to discuss with you the stages of personality development, the last topic of this, last subtopic of this main topic. So stages of personality development. Stages of, please note it down this heading also in your notebook. Whenever you see the videos, you should always have a copy with yourself so that you will see the video also and you will note it down also.
The maximum thing we learn by noting it down. So stages of personality development. What are the stages? What are the stages of personality development which are discussed by the Sigmund Freud? So stages of personality development, इसमें stages आएंगे. Let me write it first of all the stages name. Oral stage, second anal stage, third phallic stage, fourth latency stage, fifth genital. So these 5 stages were there, children. Note it down in your notebook. Oral, anal, phallic, latency and genital. Okay. So I hope you all have noted it down. So first one by one we will discuss about this one. So first of all we discuss about the oral stage. ओरल स्टेज जो होता है इट इज अ स्टेज ऑफ 0 to 2 years. 0 means as the child take birth, the infants, the newborn baby. तो और 2 साल तक के बच्चे, 0 से 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो ओरल स्टेज में होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड. ओरल स्टेज में जो प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल होता है, प्लेजर जोन जो होता है वो होता है माउथ. प्लेजर जोन उनका जो होता है वो माउथ होता है. यू हैव आई थिंक माइट हैव ऑब्जर्व कि जो the 1 year child or 2 years child, they used to do the thumb sucking and whatever they the things they have found it, they put it into their mouth. Okay, immediately वो उसको माउथ में रखते हैं, they chew it, they bite it. तो ये क्यों ऐसा करते हैं, आपको क्यों लगता है? इट इज ऑल साइकोलॉजिकल ऑल्सो, सब चीज़ें ठीक है. और पेरेंट्स को ये चीज़ें बेकार भी लगती हैं, वो अवॉइड करना चाहते हैं, मना करते हैं. बट लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, ऐसा नहीं करना चाहिए. इफ़ यू आर बिकमिंग अ गुड साइकोलॉजिस्ट और गोइंग इन टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, सो यू शुड हैव टू टेक केयर अबाउट दीज थिंग. ठीक है, बच्चे का ये प्लेजर प्रिंसिपल है माउथ, डोंट स्टॉप इट. ओके हाँ, यू वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आप उसके जो टॉयज हैं आप उसको क्लीन करके रखो. नो, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क. ये आपका काम हो जाता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बट डोंट स्टॉप देम टू पुट एनीथिंग इन टू देयर माउथ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस. उनका साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुकेगा. ठीक है, माइंड का में उसके कोई किसी भी तरह का इफेक्ट आ सकता है. तो ओरल स्टेज में बच्चे होते हैं, प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल जो होता है माउथ होता है. एक्टिविटी जो करते हैं जैसे कि थंब सकिंग करना, ठीक है, देखो दे थंब सकिंग करते हैं, ठीक है, बाइटिंग, चूइंग, ये सारी कुछ एक्टिविटी वो करते हैं. थंब सकिंग, बाइटिंग, ईटिंग, चूइंग, ठीक है, ये दीज ऑल एक्टिविटीज फाउंड इन द oral stage. Okay, now moving toward to the next stage. I hope you all have written it down. So oral stage के बाद आता है second stage is anal stage. Anal stage का जो age होता है वो 2 to 3 years होता है, और maybe sometime it is 3 and a और 3 and a half भी हो सकता है. ठीक है, तो एनल स्टेज का जो एज होता है वो 2 से 3. सो यू कैन इमेजिन चिल्ड्रन 2 to 3 years चाइल्ड और 2 to 3 and a half year चाइल्ड. अगर आपके घर में कोई बच्चा है छोटा या आसपास आपने कभी देखा है तो ऑब्जर्व करिए कि 3 से 3.5 साल के बच्चे, 2 साल से 3.5 साल के बच्चे क्या करते हैं. तो ऐसे बच्चे एनल स्टेज में होते हैं. इनका प्लेजर जोन यहाँ पे क्या होता है,
जिससे उनको प्लेजर मिलता है वो होता है एनस। प्लेजर जोन एनस होता है। आपने आई थिंक इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो 2 इयर्स और 3 इयर्स ओल्ड चाइल्ड होते हैं वो अपने एनल प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, एनल्स जो होते हैं, उसको टच करने की बार बार दे रिपीटेडली हैव अ प्लेजर ऑफ टचिंग इट अगेन एंड अगेन, and the parents again scold them for that activity. I know it is somewhere not good thing because it makes the child ill, but it is also again psychological requirement of that particular stage. So pleasure zone is anus. Now इसमें एक्टिविटी इनका क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग इनकी होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेन किया जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये इनका एक्टिविटी एरिया होता है। तो वी हैव डिस्कस द ओरल स्टेज एंड एनल स्टेज। मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड स्टेज इज द phallic stage. After the anal stage, the child moved toward the phallic stage. Phallic stage. Phallic stage is a stage of 3 to 5 years. 3 to 5 year, दिमाग में बैठा लीजिए, 3 to 5 year, यानी 3 से लेके 5 साल का बच्चा जो होता है वो फैलिक स्टेज में होता है। फैलिक स्टेज में पर्सन जो होते हैं, जो चाइल्ड जो होता है, थोड़ा सेंसिटिव होते जाते हैं। दे बिकम मोर सेंसिटिव, दे बिकम मोर इमोशनल, दे used to start understanding the thing, okay, or they become more sensitive, emotional understanding होने लगती है। They have an attraction toward the opposite gender also. Opposite gender के toward भी attraction आता है इस टाइम में बच्चों को। जैसे इस स्टेज पे 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स देखने को मिले गए हैं, 2 kind of complex. One is Oedipus, although it is written from O, but it is read from E. Oedipus, O is silent. Oedipus complex, and second is the Electra complex. ये जो complex है, this was named on someone's name. ये किसी के नाम पे रखा गया है। Oedipus और Electra was a name. जैसे Oedipus was a king, okay, and Electra was a queen, ठीक है। तो Electra is a girl और basically Oedipus is a boy. Now what happened? Oedipus as a boy, in this complex, the boy has an attraction toward the mother and wanted to, एक स्टोरी है, इस स्टोरी पे ये कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया। जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स में जो इडिपस नाम का एक राजा था, he was a king and he was very much attracted toward his mother, okay, and want to kill his father. मदर के टुवर्ड अट्रैक्शन होने की वजह से फादर को वो मारना चाहता था। एलेक्ट्रा जो थी, एलेक्ट्रा भी यही था, ही वॉज वेरी मच अटैच एंड अपोजिट अट्रैक्शन टुवर्ड हिज ब्रदर एंड वॉन्ट टू किल हर मदर। अपनी माँ को वो मारना चाहते थे एंड अट्रैक्शन था ब्रदर के टुवर्ड और फादर के टुवर्ड। तो ये चीज़ें थी। तो इन्हीं के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी, दिस कॉम्प्लेक्स वॉज नेम्ड। उनकी इसी स्टोरी पे ये कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया, इडिपस और एलेक्ट्रा। सो इडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉय हैज एन अट्रैक्शन टुवर्ड द गर्ल एंड एलेक्ट्रा में गर्ल हैज एन अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉय। अपोजिट जेंडर के टुवर्ड, अपोजिट सेक्स के टुवर्ड अट्रैक्शन रहता है और सेम सेक्स और सेम जेंडर को हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं, राइवल मानते हैं और उनसे हेट की फीलिंग रखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फैलिक स्टेज में आता है। इट कम इन द फैलिक स्टेज व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 3 to 5 ईयर। ठीक है, आपने अक्सर शायद बच्चों को सुने हुए, जैसे जो बॉय चाइल्ड होता है तो वो अक्सर बोलते हैं मुझे मम्मी अच्छी लगती है, पापा नहीं अच्छे लगते, मुझे पापा नहीं चाहिए, पापा नहीं अच्छे। या गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर बोलती हैं पापा, मुझे पापा के पास जाना है, मम्मी नहीं अच्छी, मम्मी बेकार है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं जो हर एक पर्सन को होते हैं। यूजली हम इनको अवॉइड करते हैं, हमें लगता है अभी टेक इट इन अ वेरी ह्यूमर सेंस में हम लोग लेते हैं कि अच्छा जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दे इंजॉय इट। अच्छा बच्चा देखो ऐसे बोल रहा है,
But those who have a knowledge about this, they know the child was in the phallic stage. This is all the characteristics of the different stages children. क्या होता है ना, हर एक स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पर्सन उसे फुलफिल करता है. ठीक है, तो इसी तरह है फैलिक स्टेज में कॉम्प्लेक्स अराइज हो रहा है. फैलिक स्टेज के बाद आता है लेटेंसी और जेनिटल स्टेज. लेटेंसी में पर्सन जो होता है, द फोर्थ स्टेज इज लेटेंसी एंड द फिफ्थ स्टेज इज जेनिटल. लेटेंसी में पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा सोशल डेवलपमेंट की ओर जाता है. लेटेंसी स्टेज जो होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है और जेनिटल स्टेज जो होता है वो 7 to above. अब 5 से 7 साल के बच्चों को आप इमेजिन कर लो, वो किस स्टेज में होंगे, वो स्कूल जाने लगते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगता है. सोशल के फ्रेंड्स बनाना, टीचर से रिलेट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं. फिर जेनिटल स्टेज 7 to above, 7 साल से ज़्यादा. अब यहाँ पे मेच्योरिटी आ जाती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में. ठीक है, सो इस पूरी थ्योरी को साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रेड. So here we have completed the psychodynamic approach. I hope you understand it, children. Still, if you have any question, you can ask me. Thank you so much for carefully observing and listening to me. Thank you.